Ramcharan is Yes, the superstar. it was my and honor. that was so well choreographed. Yes. Wonderful. Thank you. So is this your first trip to Kashmir? Yes, I've been in India for about 10 months now, and this is my first time visiting Jammu and Kashmir. First of all, RRR is not Bollywood, right? It's Tollywood. Tollywood. So I want to correct it. But we wanted to show that we Koreans and also staff at Korean Embassy have this huge love and respect for Indian culture. Jammu and Kashmir. Yes. I am in love with this nature, beautiful, clean, serene. And if I could, I would love to take some air, clean and fresh air into my bag, back to Delhi. And one last. I mean, I don't know why Jammu and Kashmir is not yet well known around the world. So I hope many people can come visit here. What we saw outside of the meeting rooms, which is a garden, and it's lovely, beautiful. I think that the fact that you managed to do something, to keep something this beautiful and still keep the chinar trees is amazing. And you come from the land of football, you come from the land of Messi. A lot of students here, they are inclined towards football right now. So are you discussed sports as well here? We haven't so far, but we are very appreciative of India's support. I think this street is new. The renovation of this street is new. Correct. And I think it makes it very easy and very comfortable for tourists to come and look at different shops. And I think what they've done to this place is wonderful because it really showcases the history of the old part of Srinagar. I remember the rain and of course the wonderful mountains and the meadows and the beautiful Dal Lake and the warmth of the Kashmiri people. So you think Kashmir is changing for good? I think Kashmir is already a beautiful place in the first place. Wonderful. You know, I don't know how it can get more beautiful. Oh, really, really good. I mean, we love to have more time just to stay a few days. So you should stay. Yes, why not? I mean, the sightseeing a little bit more because the program allows you to do what you have to do in terms of work. It's been really fruitful meeting here yesterday at the conference center. But yes, I mean, I have been witnessing that everyone is so anxious about what this area can offer for tourism, and I think the potential is really high. और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदस्सिर कादरी और सरोज कफील। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जल्दी से पहले मैं ये बताया कि आज तीसरा और आखिरी दिन है, जाहिर है बहुत अच्छे जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, जो प्रतिनिधि आए थे, जो मंदोबीन आए थे, वो वहां घूम रहे हैं, वहां की खूबसूरती को देख रहे हैं, वहां की जो लोगों की जो गर्मजोशी है, जो मेहमान नवाजी है, उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपने क्या महसूस किया? 3 दिनों से इस न्यूज को फॉलो कर रहे हैं जो G20 समिट है, तो लगातार हमारी यहाँ के लोकल लोगों से भी बात हुई और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात हुई और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक खुश आइन नोट पे, गुड नोट पे ये इख्ताम पजीर हुआ है ये G20 समिट। और जो इस तरह से हमारा आपने मंदोबीन का जिक्र किया, तो आज सुबह जो तीसरा दिन था, आखिरी दिन था, और सुबह योगा से ये शुरू हुआ और उसके बाद रॉयल जो स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है वहां पर गोल्फ खेला और जिसमें कोरियन एम्बेसडर है उन्होंने बजाते खुद गोल्फ खेला और अमिताभ जो है जो G20 शेरपा है तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। और उसके बाद पोलो व्यू गए और पोलो व्यू पे मेरे साथी सरोज ज्यादा रोशनी डालेंगे और जो मुगल गार्डन्स है उनको वो दिखाया गया और ये कोशिश की गई कि जो हकीकी मानू में तस्वीर है कश्मीर की वो उनको दिखाई जाए और उनसे उनको रूबरू किया जाए ताकि ये लोग जो है ये एज एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स काम करे, जो बाहर अपने अपने ममालिक जाकर ये लोगों को बताएं कि कश्मीर वाकई तौर में क्या है। और इस बात पर जोर दिया गया कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जाए और इंटरनेशनल टूरिज्म की जो शरह है, जो ग्राफ है, उसमें उछाल पैदा हो जाए। और जिस तरह से जो यहाँ पे जिस तरह से कश्मीर की ब्यूटी की अगर हम बात करेंगे, इसका कोई सानी नहीं है और उसको सेल करने के लिए जो साथ साथ जो एलाइड सेक्टर्स है जैसे हैंडीक्राफ्ट हमारा है और जो जिले डल है या फिर बाकी जो डेस्टिनेशंस है, वर्जिन डेस्टिनेशंस है, उनको सेल करने के लिए, उनको सेहती नक्शे पर लाने के लिए भी तबादला ख्याल हुआ। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं उनकी अगर बात करें तो काफी पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं
इस G20 समिट से, और सरकार की भी यही कोशिश रही, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था G20 समिट को यहाँ पर मुनक्कद करना, और इस चैलेंज को बिलाखिर सरकार ने कबूला और पास भी हुई सरकार इसमें, और क्रेडिट जो है यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है और यहाँ के लोगों को जाता है, और जिन्होंने इसमें खासा ताउन दिया, और जो खुश आइंद नोट पे, एक गुड नोट पे ये जो G20 समिट है वो इख्तिताम पजीर हुई। और जिस तरह से वर्जिन डेस्टिनेशंस की हमने बात की, तो सरकार के सामने ये एक प्लान है ऑलरेडी, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसमें 40 ऐसी डेस्टिनेशंस है जिनका जिक्र सरकार ने किया था और उनको नोटिफाई किया गया था, और इसके अलावा मजीद जो डेस्टिनेशंस है उनको सयाहती नक्शे पर लाने की कोशिश जो है वो जारी है। और जिस तरह से अमिताभ कांत का बयान भी सामने आया, जो G20 शेरपा है, उनका कहना है कि जो अब फिल्में जो है कश्मीर में ही बनेंगी, और यहाँ पर हर लिहाज से जरखेज है यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जो सिनेमेटोग्राफी है, न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि हॉलीवुड के लिए, और ज्यादा जोर जो है वो अब हॉलीवुड पे दिया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स है या अभिनेता है या जो बिग बॉलीवुड हाउसेज है वो देखने को मिले कि इस साल वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। और जिस तरह से सरकार के सामने भी एक चैलेंज था कि दफा 370 के बाद जो कश्मीर की सूरत, कश्मीर की शक्ल जो है उसको बदलने का दावा कर रही है सरकार लगातार। तो चलिए इस पर फिर बात करते हैं। फिलहाल सरोज कफील से के पास चलते हैं। सरोज, ये बताएं कि कितना खूबसूरत कश्मीर है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जो मंदोबीन आए थे उनमें कई ऐसे रहे होंगे जो पहली बार आए थे, उनका किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? G20 क्योंकि तीसरा और आखिरी दिन है, तो किसको हम कामयाबी के किस लेवल पर देख रहे हैं सरोज? बेशक विशाल, बता दूं आपको कि अभी 1-1.5 घंटे पहले हम अपोलो मार्केट में आपको सुबह से ये दृश्य दिखा रहे थे। करीबन 3:15-3:30 के करीब जो G20 की डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंची। दुकानदार भी सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे काफी तेज बारिशें हो रही हैं। जो G20 डेलीगेट्स यहाँ पे आए और ये हर दुकान में गए। कुछ यहाँ की दुकानदार जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके कुछ मसले भी थे, इन्होंने 1-to-1 उनसे बात की। कई सारे ऐसे डेलीगेट्स हैं जो नाइजीरिया से आए थे या साउथ कोरिया से आए थे, उन्होंने पेपर माशी के कुछ आइटम्स लिए, पश्मीना के कुछ आइटम्स लिए, क्योंकि इस मार्केट के बारे में आपको पता ही है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की काफी सारी शॉप्स हैं इसमें। और काफी ज्यादा इंप्रेस हुए वो, जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने क्लियरली कहा, कुछ लोग ऐसे भी थे, आपको बता दें इसमें विशाल की, जो पहली बार कश्मीर नहीं आए थे डेलीगेट्स, लेकिन कुछ डेलीगेट्स जिनसे हमारी बात हुई वो पहली बार वादी में आए थे। काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा उनका जब उन्होंने बात की यहाँ की मेहमान नवाजी की, यहाँ के खाने की, काफी ज्यादा इंप्रेस थे। और आज जैसा आपने देखा होगा, सुबह ही कुछ डेलीगेट्स हैं, उन्होंने पहले इस गोल्फ कोर्स जो है रॉयल स्प्रिंग वहां से टी ऑफ किया था। जो विमेन डेलीगेट्स हैं उन्होंने कश्मीर की पोशाक पहनी थी, वो यहाँ के फेमस मुगल गार्डन्स में गए, तस्वीरें खिंचाई उन्होंने। उसके बाद उनका लंच हुआ था, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ के पूरे दुकानदार जो हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, और फाइनली आज वो मौका आया, डेलीगेट्स यहाँ पे आए। सुबह ही ये एरिया सैनिटाइज कर दिया गया था, और जब यहाँ पे डेलीगेट्स आए, कि जैसा हम आपको बता रहे थे, काफी सारे डेलीगेट्स ने हमसे बात भी की, शॉपिंग हुई यहाँ पे। और अभी जब हमारी फिर शॉपकीपर्स से बात हुई तो बस उनका भी यही कहना था कि हमने जो अपने मुद्दे हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और बस हम उम्मीद यही करेंगे कि जो हमारे कश्मीर का विरसा है, जो हमारा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, अब ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं जो एक कमी आई थी, जो आप FDI कह लीजिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रहता है, उसमें कमी आई थी, वो वापस से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वापस यहाँ सर्कुलेट होगा, क्योंकि जो डेलीगेट्स है एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके बाहर गए हैं। जी विशाल जी। और क्या आज, चूंकि आज आखिरी दिन था, तो कुछ ऑफिशियल कुछ जो एक्टिविटीज हैं, जो और अलग अलग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, क्या उनमें से कुछ बाकी रह गया है, या फिर अब जो है वो मेहमान नवाजी का एक बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेहमान नवाजी तो खैर कभी खत्म होती नहीं है, तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि अभी इसके बाद ये लोग जो डेलीगेट्स है, इनका टूर जो था वो आर्ट एम्पोरियम का था। आर्ट एम्पोरियम के हवाले से अपने ऑडियंसेस को कहना चाहेंगे, आर्ट एम्पोरियम में जितने भी यहाँ के आर्टी क्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स हैं या हैंड क्राफ्ट्स हैं, वो सब सेक्शंस वहां पे हैं। आप कॉपर की बात कर लें, पश्मीना की बात कर लें, या जितने भी हैंडीक्राफ्ट, पेपर मशी की बात कर लें, सबके स्टॉल्स वहां सजाए गए थे। जब हमारी सुबह जो जैन के आर्ट एम्पोरियम के डायरेक्टर, उनसे भी बात हुई तो तैयारियां थी, बहुत ही खूबसूरत जो लाइव
आर्टिसंस है वो वहां पे चरखा है उस पे वो अपना आर्ट दिखा रहे थे, या लाइव जो हैंडलूम्स है उस पे शॉल्स जो हैं या पश्मीना के वो वीव हो रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मौसम की खराबी की वजह से वो अभी जो आर्ट एम्पोरियम है वहां नहीं जाएंगे। अब इनका प्रोग्राम यही रहेगा, ये वापस अपने होटल जाएंगे। और जो ये डेलीगेट्स हैं, आज भी कुछ कल्चरल और रंगारंग प्रोग्राम होंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिसंस है, लोकल सिंगर्स है, वो लाइव इनके सामने परफॉर्म करेंगे। और आज डिनर के बाद कल सुबह ये लोग अपने अपने मुल्कों में वापस जाएंगे, एक अच्छी याद लेके, एक अच्छी मेमोरी लेके कश्मीर की। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है शायद इस बीच कुछ मुदस्सिर को याद आ गया हो। मुदस्सिर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मेहमान थे, जो डेलीगेट्स थे, तो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे। और यहाँ की मेहमान नवाजी जो कि दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ की खूबसूरती तो है ही, और उसका भी वो जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ के लोगों का और यहाँ की इंतजामिया का, कि किस तरह से उनका ख्याल रखा गया और किस तरह से उनका जो ये टूर था, ये जो इंटरनेशनल समिट था, इसको कामयाब बनाया गया। और दूसरी जानिब जिस तरह से यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करेंगे, या फिर यहाँ के हाउस बोट्स, या फिर यहाँ की तवारीखी जगह हैं, तो उनका जिक्र भी आया और उनकी जो सैर हुई या वहां पर जब उनका विजिट हुआ, तो वो भी एक काबिल सराहनीय कदम था। और इसके बाद जो आज दिन भर जो यही इसी नोट पर यह इख्तिताम पजीर हुआ कि आज दिन भर जो गतिविधियां रही वो ये थी कि पूरा जो श्रीनगर सिटी है उसे रूबरू किया जाए, क्योंकि तवारीखी शहर है। और जिस तरह से हमने कहा कि सरकार के सामने भी ये चैलेंज था कि दफा 370 के बाद वो उस बदली हुई तस्वीर को दुनिया के सामने लाए जिसके दावे किए जा रहे थे। और यकीनी तौर पर G20 समिट एक ऐसा मौका था जो सरकार ने बिल्कुल उस चैलेंज को कबूला, और उसके बाद सरकार इसमें कामयाब हुई कि कहीं न कहीं कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर की जो पहचान है, वो दुनिया के सामने लाई गई। विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सरोश और मुदस्सिर, इस जानकारी के लिए। और इसी